Hello and welcome back, class 7 students, to your chapter. Right, so we were doing your first chapter, that was your. I would just again go through that page number 1. Right, high school 15. So we were actually doing geographical diversity at chapter 8. In our past 6 videos I have made, this was will be the 7th video, if I'm not wrong, 7th episode. In our first episode, we just did the general introduction. In the next episode, second episode, we did about the Himalayas, and all about it we have read about like how was it formed. Then we also did what were the types and the categories, the three main ranges, right? Then we also did the cold desert, and then we focused on to the the third episode, that was Gangetic Plains. Right after the third episode, we were having our fourth episode, that was your the Great Indian Desert or Thar Desert. After that, we had our fifth episode, that was your Aravali Hills, and then the sixth episode. Okay, fifth we also had your Peninsula Plateaus, and then the fifth episode has your beautiful Indian coastlines, right? And now we are having with episode number 7, which contains Indian islands. Okay, so we'll just go through this, right? So Indian islands, obviously you all know what all Indian islands, like in islands in India, what all comes in. So we have Andaman, Nicobar, and your Lakshadweep Island mainly. So the Indian island refers to the group of islands scattered across the Indian Ocean, the Arabian Sea, and Bay of Bengal. So which form part of Indian territory? जो भी Indian territory के अंदर में आता है, लाइक ओशंस जो ये आते हैं जैसे इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ये तीनों इंडियन टेरिटरीज के अंदर आते हैं। और इन इंडियन टेरिटरीज के अंदर जो जो आइलैंड्स आते हैं, जो भी ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स आते हैं, जो बहुत टुकड़े टुकड़े में भी हैं, सो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में जो जो आते हैं वो सारे आपके इंडियन आइलैंड्स होते हैं, है ना। India has two major islands, which I said the main islands, major two island groups, that was Lakshadweep in Arabian Sea and Andaman Nicobar in Bay of Bengal. So बेटा लक्षद्वीप इन अरेबियन सी मतलब कि कौन सी साइड में हो गया, दिस वाज योर वेस्ट साइड, दिस वाज योर वेस्ट साइड। नेक्स्ट जो है आपका निकोबार आइलैंड, दैट वाज इन योर ईस्ट साइड, जहाँ आपका वेस्ट बंगाल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पड़ते हैं ना, उस वाली साइड यानी कि ईस्ट साइड, राइट। सो लक्षद्वीप is in your Arabian Sea and Andaman Nicobar Island is in Bay of Bengal. These islands have unique wildlife, beautiful beaches, coral reefs, and volcanoes. So they do have wildlife, means they do have animal, diverse animals, right? They have beautiful beaches. They have coral reefs, and there are also certain volcanoes in these mountains. Several ancient tribes also made these islands their home tens of thousands of years ago. There were several ancient tribal people who are there, who are living, who are doing like who have their home on this islands, right? Like our home is Indian mainland or what USA mainland, whatever. Indian land, but that's also comes under India, Lakshadweep Island and this and the Nicobar Island. So in those islands also, it is also home to many people and many tribal people. So many tribes also do live there. Next is Lakshadweep Island. So Lakshadweep is an archipelago. Archipelago is a group of islands. So like it is not just one or two islands. So it is more than one or two islands, right? Where right it is here written as 36 islands. So it is a group of 36 different islands. As said, it is there in the Arabian Sea. It is close to the Malabar coast of Kerala. So Kerala आपका कौन सी side में आता है? Like when we do like here. So Kerala is somewhat in here, right? If I'm not wrong. So Kerala is kind of in your Arabian Sea portion होगा, like this or something. So यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड कहीं पे है, which make there many part and parts. तो वो जो नज़दीकी है वो यहाँ पे मलाबार जो कोस्ट है केरला का, उससे पास में है। और ये कितने 36 कोरल रीफ से बना हुआ है, कोरल से बना हुआ है। और नॉट ऑल आइलैंड्स आर इनहेबिटेड बाय पीपल, मतलब कि सारे जो आइलैंड्स हैं वो लोगों की उसमें नहीं है। मीन्स जो जितने 36 हैं सारे के सारे ही पीपल से इनहेबिटेड नहीं है, यानी कि उसमें लोग नहीं रहते हैं सारे के मसारों में। इंडिया की बहुत ही ज़्यादा, इंडिया हैज़ वास्ट मेरीन एरिया, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पानी का एरिया है जिसमें वो लोग
they can do whatever they want. There is very vast area for us to explore, right? And India controls the zone, I said, allowing for fishing, as I said, resource exploration and environmental protection. So सिर्फ और सिर्फ फिशिंग ही नहीं, वहाँ पे आपका रिसोर्स एक्सप्लोरेशन भी होता है कि आपको क्या क्या रिसोर्सेज हैं, वो सारे को भी हम देख पाते हैं। वहाँ पे फिशिंग वगैरह भी हो पाती है, यू कैन डू योर फिशिंग एंड एवरीथिंग। एंड अपने रिसोर्स एक्सप्लोरेशन यानी कि कोई रिसोर्स है आप उसको भी देख सकते हैं, यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी कि एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन भी वहाँ पे अच्छी तरीके से होती है। आगे हम बात करें अंडमान निकोबार। सो दिस archipelago comprises more than 500 large and small volcanic islands। तो जो ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसमें 500 प्लस, मोर देन हैबिट है, इसमें 500 प्लस आइलैंड है, छोटे बड़े, बहुत बहुत छोटे बड़े आइलैंड है जो कि वॉल्केनिक आइलैंड्स है, यानी कि यहाँ पे वॉल्केनो प्रेजेंट है, राइट? जो कि दो डिस्टिंक्ट डिवाइडेड ग्रुप्स में है, यानी कि दो कैटेगरी कैटेगरी तो नहीं, डिस्टिंक्ट डिवाइडेड ग्रुप्स में है, विच इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जो इनकी लोकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई सो, राइट? इनके जो लोकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हो कोरल रीफ इन योर लक्षद्वीप, this is your coral reef and your Andaman Island, and this is a floating dock, a small port of the Indian Navy near Andaman Island। यहाँ पे इंडियन नेवी का थोड़ा बहुत सा यहाँ पे एक फ्लोटिंग डॉक है, ठीक है, यानी कि ये शिप टाइप कह सकते हो, बट इट इज जस्ट लाइक फ्लोटिंग है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक एरियल व्यू दिख रहा है, एक एक्टिव वोल्केनो का, जो कि मतलब एक बंजर से आइलैंड में है, विच इज द ओनली वन इन द इंडिया। जो यहाँ पे कितना सा ये आइलैंड ही है, और यहाँ पे आपके वोल्केनो है। दे आर लाइक द आउटपोस्ट ऑफ इंडिया कीपिंग एन आई ऑन द ओशन। सो ये इंडिया के एकदम बाहर में आते हैं, लाइक इट इज वेरी आउटर पार्ट ऑफ द इंडिया, राइट? क्योंकि इंडिया मेनलैंड यानी कि इंडिया के अंदर या कहीं पे नहीं आते, बॉर्डर में भी नहीं आते, बॉर्डर से भी बाहर आते हैं, राइट? सो इट इज काइंड ऑफ एन आउटपोस्ट। आउटपोस्ट मीन्स लाइक जो नहीं होते, जैसे कि जैसे लाइक यू हैव अ किंगडम और समथिंग, लेट्स से। तो यहाँ पे आपका किंगडम है, तो यहाँ पे एक आपका बैरिकेडिंग टाइप से यहाँ पे आपका कुछ है कि यहाँ पे आउटपोस्ट है, कि यहाँ से कोई बंदा जाए तो पता लगे, टाइप ऑफ दैट। सो दे आर लाइक एन आउटपास जो कि ओशन में हमारे इंडिया के लिए, दे आर कीपिंग एन आई ऑन अस। मीन्स मतलब कोई भी बंदा, कोई भी लोग, कोई भी चीज वहां से आ रही है, कुछ भी है, दे आर कीपिंग एन आई ऑन द ओशन, राइट? इट इज होम टू वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना बच्चों, फ्लोरा एंड फौना, डबल एफ, ठीक है? फ्लोरा एंड फौना मतलब कि बहुत सारे एनिमल्स का ये हैबिटेट है, यहाँ पे वो लोग रहते हैं। एंड बहुत सारे प्लांट्स वगैरह, बहुत सारे काइंड ऑफ ट्रीज एंड एवरीथिंग, बहुत सारी वेराइटी, डाइवर्स वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अदर देन दैट, the Andaman Island are also significant from a historical point of view. Many of the freedom fighters were jailed there under the most severe conditions in a prison called complex called cellular jail। तो अब जो बच्चा अंडमान आइलैंड आता है, अंडमान आइलैंड जो आता है, ये आपका हिस्ट्री का भी पार्ट है। वाई सो? क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रीडम फाइटर्स जो थे, है ना, जो हमारे फ्रीडम के लिए, हमारी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, मेनी ऑफ दोज फ्रीडम फाइटर्स वर जेल्ड, यानी कि उनको बंदी बनाया गया था, उनको जेल में डाला गया था। वहां पे, कहाँ पे? लक्षद्वीप, अंडमान में, सो सॉरी, अंडमान में दे वो जेल्ड अंडर देयर, राइट? वहां पे उनको जेल करवा दी गई थी। और क्यों, कैसे? तो वहां पे बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशंस थे। किस चीज के? दे वर मोर दे वर लाइक दे वर अंडर द मोस्ट सीवियर कंडीशंस, है ना, प्रिजन कॉम्प्लेक्स व्हिच वाज कॉल्ड एज सेलुलर जेल। सेलुलर जेल के अंदर ये लोग थे, है ना। बहुत ही सीवियर कंडीशंस में रखा जाता है, जैसे अगर मैं कहूँ तो काला पानी काइंड ऑफ चीज, इफ यू हैव हर्ड अबाउट इट, राइट? अगर एक पिक्चर की वेब सीरीज, आई थिंक सो इट वाज मोर ऑफ लाइक a survival kind of thing, but it was also based on these islands only। So you must have been knowing that kala pani jail something, but it was not actually kala pani, like, yeah, there is a jail also, like, so most, I mean, what meaning is the most severe kind of jail जहाँ पे बंदी बना के you have to do torture एंड बहुत जो बेसिक नेसेसिटीज है वो भी यहाँ पे मीट नहीं पत कर पाती थी, लाइक खाना वगैरह, वो वहाँ पे नहीं होता था, वैसे काइंड ऑफ कंडीशन से वहाँ पे रखा जाता था। दैट वर मोस्ट सीवियर कंडीशंस में रखा जाता था, विच वाज प्रिजन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड सेलुलर जेल। It has been preserved to remind us of the tremendous sacrifices that our forefather made us, so we can so we could be free। तो ये हमें क्यों याद रखना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ट्रेमेंडस, यानी कि बहुत लाजवाब, बहुत ही ऐसे सैक्रिफाइसेस, बलिदान दिए गए हैं हमारे फोर फादर्स, हमारे पूर्वजों से, हमारे फ्रीडम फाइटर से,
जो हमें याद रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमारी हमारी फ्रीडम के लिए, हमारी आज़ादी के लिए हमें एज ए हटाने में, एज एन हमारे इंडिविजुअल को वो करने के लिए ही, यहाँ पे रहने के लिए ही दे हैड सेक्रीफाइस देयर लाइफ। उन्होंने अपनी लाइफ, उन्होंने अपनी जिंदगी का यहाँ पे बलिदान दे दिया। फॉर व्हाट? फॉर व्हाट सेक दे हैव गिवन दिस? फॉर द सेक ऑफ आवर लाइव्स, टू बी फ्री फ्रॉम हु? फ्री फ्रॉम ब्रिटिशर्स एंड एवरीथिंग। So because of that freedom, because of that आज़ादी, उन्होंने अपनी जान की को सैक्रिफाइस कर दिया, जान की बलिदान दे दिया, राइट? दैट इज व्हाट इट इज। अदर देन दैट, यहाँ पे ये है कि हम अपनी नेक्स्ट नेक्स्ट क्लासेस में और इसके बारे में विल रीड थ्रू इट। Right, next is Barren Islands. So Barren Islands in where? So Barren Islands is in the Andaman Nicobar Island, which is the only active volcano in India, and it sometimes erupts, sending smoke and lava into the sky. So ये Barren Islands जो यहाँ पे है, यहाँ पे इतना ही अकेला आइलैंड है जो कि एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया का, और ये कभी कभार ऐसे फूटता है और बहुत ज़्यादा स्मोक एंड लावा स्काई में वो फेंक भी देता है, राइट? आगे अगर हम बात करेंगे तो हम डेल्टा इन द वेस्ट बंगाल भी यहाँ पे करेंगे आज, और बच्चे हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट भी करेंगे, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हो जाएंगे, राइट? सो एपिसोड नंबर 7 है ये, हाँ, एपिसोड नंबर 7 में हम कर लेंगे, एंड इन आवर लास्ट एपिसोड दैट विल बी द नेक्स्ट एपिसोड, उसमें हम जस्ट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। सो इट विल बी अ शॉर्ट ऑफ पीरियड, शॉर्ट एपिसोड, राइट? सो ये थोड़ा मे बी लॉन्ग हो जाए, बट आई ट्राई टू कीप इट एज शॉर्ट एज इट कुड बी, राइट? बट हम ये दोनों टॉपिक्स भी आज करेंगे। सो वी हैड डन 3 टॉपिक्स: इंडियन आइलैंड, डेल्टा इन वेस्ट बंगाल, एंड योर नॉर्थ ईस्ट हिल्स। सो डेल्टा का मैंने आपको बताया था कि डेल्टा कैसे बनता है, राइट? डेल्टा, यहाँ पे आपको पिक्चर है मैंग्रोव्स ऑफ डेल्टा इन द सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल। सो एज यू ट्रैवल बैक फ्रॉम आइलैंड टुवर्ड द ईस्टर्न साइड में अगर हम देखेंगे, यानी कि जहाँ पे बंगाल वगैरह, ईस्टर्न साइड ऑफ द हिमालयाज, कैसे? वाया बे ऑफ बंगाल से होके हमें जाता है सुंदरबंस। तो सुंदरबंस क्या है? सुंदरबंस बच्चे एक लोकेशन है ना? यहाँ पे क्या है? दिस इज लोकेटेड इन द डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। डेल्टा एंड गंगा, डेल्टा क्या होता है बच्चे? बता रखा है कि जो रिवर्स अपने साथ डिपॉजिट्स लाती है, अपने साथ चीज़ें लाते हैं, अपने साथ मिनरल्स लाती है, वो यहाँ पे फेंकती हैं। सर्टेन टाइम के बाद यहाँ पे एक डेल्टा फॉर्म हो जाता है, जो कि आपकी एक काइंड ऑफ लैंड बन जाता है, राइट? सो दिस इज लोकेटेड इन डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, यानी कि गंगा एंड ब्रह्मपुत्र की जो नदी लेके आई है, जो रिवर्स लेके आई है डिपॉजिट वगैरह, उनके पोर्शन में, उनके पाथ में ये बना है। सो उन्होंने बनाया है काइंड ऑफ, ये है ना? So Ganga and Brahmaputra and their tributaries. This delta is a unique combination of the river, sea and land. यानी कि यहाँ पे बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है रिवर का, सी का, लैंड का। क्यों? क्योंकि अबाउट हाफ ऑफ इट इज लोकेटेड इन इंडिया एंड रेस्ट इज इन द बांग्लादेश। क्योंकि आधा जो है मेरे बेटा इंडिया में है, एंड आधा बांग्लादेश में। क्योंकि बिकॉज यू कैन सी वेस्ट बंगाल जो है, इट इज बॉर्डर टू योर बंगाल बांग्लादेश। सो जो वेस्ट बंगाल में ज़्यादा पड़ते हैं, अदर देन दैट इज इन योर बांग्लादेश, जो कि आपका कंट्री का नेबर है ना? बांग्लादेश, ठीक है। दिस इज ऑल्सो यूनेस्को हेरिटेज साइट, ये यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। सो सुंदरबन क्यों? क्योंकि सुंदरबन में बहुत सारे स्पीसीज पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग द फेमस रॉयल बंगाल टाइगर। जो रॉयल बंगाल टाइगर है, इट इज ऑल्सो फाउंड इन दिस स्पेसिफिक एरिया, राइट? यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, आपके यहाँ पे मैंग्रोव जो ट्री है, यहाँ पे ज़्यादातर ग्रो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आपका सेवन सिस्टर वाटरफॉल है ना, मेघालय इंडिया में। ये रही, ये इतना अच्छा लग रहा है, इट इज़ वेरी मच ब्यूटीफुल टू सी दिस काइंड ऑफ स्टफ, राइट? देन दिस इज द शक Mensik festival, which is celebrated in Khasi people as form of gratitude toward nature, है ना? Other than that, this is your living tree, living root bridge, जो कि बनाया गया है आपका चेरापूंजी में, मेघालय में, ठीक है। सो नाउ stay on the map, we move towards the hill of northeast, ठीक है। So we can see Garo, Khasi and Jantia, okay, they have those mark। so ये आपके नॉर्थ ईस्ट में पड़ते हैं, these all the names which I have told। These hills are the part of the मेघालय प्लेट्यू, यानी कि जो मेघालय में प्लेट्यूज हैं उसके पोर्शन में है, उसके पार्ट में है। What are they are known for? They are known for their lush greenery, यानी कि यहाँ पे हरी भरी रहने की, हरी भरी पेड़ पौधे, इन सब के लिए माना, मतलब they are known for that। बहुत ही हैवी रेनफॉल, यानी कि बहुत तेज बारिश होती है, हैवी रेनफॉल है यहाँ पे। ब्रेथ टेकिंग वाटरफॉल्स, यानी कि एकदम ही झरने इतने अच्छे हैं दैट आप अपना सांस लेना भूल जाए, दे आर सो मच अमेजिंग फैसिनेटिंग कि आप उनको देखते ही रहें। सो ब्रेथ टेकिंग वाटरफॉल्स,
और जो रीजन है, दिस रीजन experiences one of the highest rainfall in the world, making it rich in forest, unique wildlife and fertile land. अब ये जो पर्टिकुलर रीजन है, आपने पढ़ा भी होगा मेघालय में एक पोर्शन है, वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है. सो इट इज़ नोन फॉर हाईएस्ट रेनफॉल नॉट ओनली इन द इंडिया एंड द होल वर्ल्ड, राइट. यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जिसकी वजह से ये बहुत ही रिच है, यानी कि बहुत ही अच्छी है इन टर्म्स ऑफ द फॉरेस्ट, इन टर्म्स ऑफ द यूनिक वाइल्ड लाइफ एंड ईच एंड एवरी स्टफ. यहाँ पे बहुत फर्टाइल लैंड है, राइट. सारा कुछ है यहाँ पे बिकॉज ऑफ दैट. अदर देन दैट हम यहाँ पे एक और चीज़ पढ़ेंगे, डोंट मिस आउट, दैट इज Malinong village, situated in the East Khasi Hills of Meghalaya, is renowned as the cleanest village in Asia. So cleanest village का इसको वो नाम दिया हुआ है. The picturesque village is famous for its well-maintained cleanliness, bamboo dustbin, and eco-friendly living practices. तो ये जो पिक्चर सीख मैंने भी इतनी अच्छी जो ये विलेज है, इसको क्यों बनाया गया, इसको मतलब क्यों जाना जाता है, व्हाई इट इज नोन फॉर, व्हाट इज इट नोन फॉर, ये इसलिए फेमस है बिकॉज ऑफ इट्स वेल मेंटेन मेंटेनेंस, यानी कि क्लीननेस, जो साफ सफाई है उसके लिए, जो बैम्बू के डस्टबिन हैं, डस्टबिन जो बनाए गए हैं ना, उसके लिए दे आर नोन फॉर दैट. अदर देन दैट दे आर ऑल्सो नोन फॉर देयर इको फ्रेंडली, यानी कि एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली हरकतों के लिए, एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस के लिए जो ये अपने एनवायरमेंट के लिए हम लोग करते हैं यहाँ पे. एंड दिस विलेज इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स लिविंग रूट ब्रिज, लिविंग रूट ब्रिज के लिए भी इसको जाना जाता है, which was created by weaving tree roots over the course of many years. तो यानी कि जो ट्री रूट्स होते हैं, तो उनका जैसे हम वीव करते हैं ना, जैसे सुई धागा ऐसे सच, तो उससे ऐसे बना के यहाँ पे बहुत सालों का टाइम लग के यहाँ पे लिविंग रूट ट्री बनाया गया है. अब बेटा जो आगे के चैप्टर आगे का है चीज़ें, वो हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे. एंड फॉर दिस एपिसोड हमने किया नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, डेल्टा एंड वेस्ट बंगाल एंड सुंदरबन एंड इंडियन आइलैंड्स, और आपका चैप्टर होता है यहाँ पे खत्म. ऑल द पार्ट ऑफ योर चैप्टर इज बीन एंडेड बाय मी. ठीक है. अब जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा, एक और एपिसोड आएगा, which will be focusing on what, which will be focusing on the summary of this chapter and your back question answers. You don't have much like many back question answers, but yeah, you do have it, so we'll try to do it.